موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس وقت یہ آپ کی تصویر ٹانگ کر تو مطلب اس قدر غلیظ زبان بول رہی ہوتی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی اپنی بھی تو ویڈیو لے کر آئیں جو ختم نبوت پہ انہوں نے کچھ کیا ہو۔ ہاں وہ نا یہی بات ہے نا کہ مطلب اگلے بندے کے اندر سے یہ لوگ کیڑے نکالتے ہیں اور خود کی ان کی اصلیت کا کوئی پتہ نہیں کہ بندہ کون ہے۔ بندہ کون ہے؟ یہ اصل میں یہ ایجنسیز کے لوگ ہیں محترمہ، یہ ایجنسیز کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہ کھیڈاں گے تو نہ کھیڈن دیاں گے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ایسا ہی ہے، کریڈیبلٹی خراب کریں گے۔ ہاں تو مبشر شاہ کا اگر آپ نے بات کی ہے کہ میرے اگر مخالف ہیں تو میری مخالفت تو سال ہر سال بڑی پرانی سی ہو رہی ہے جی، وہ تو مجھے تو خود سال کا فگر بھول گیا کہ 10 سال ہو گیا کہ 15 سال کے یا 20 سال، مجھے تو وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جب سے میں سوشل میڈیا 25 سال سے میں سوشل میڈیا پر ہوں تو مخالفت اس وقت سے ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ مخالف کیا آج تک ہمارا بال بھی بیکا کر سکا؟ جب ہم مخالف ایک میں تھوڑی سی عرض کر لوں، مخالف مخالفت جب کرتا ہے تو کیا اس نے نقصان، سوال یہ ہے کہ اس نے نقصان آج تک کیا پہنچا ہے؟ بے شک کوئی تھوڑا بہت کوئی نقصان، کوئی رتی برابر کوئی پتہ بھی تو چلے نا بھائی تو ایک مخالفت کر رہا ہے، تو نے نقصان، جبکہ میں بتا سکتا ہوں کہ میں نے مخالف کا نقصان کیا پہنچایا ہے۔ میں نے مخالف کے ہزاروں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے، ماشاءاللہ اس کی کمیونٹی کے اندر سے توڑ کے میں نے شامل کیا الحمدللہ، اور میں نے الحمدللہ یہ چلے ایک نقصان ہی کافی ہے بے شک، اور بہت بڑا نقصان ہے یہ۔ ہاں او بھائی چلو تو کہتا ہے ہزاروں چھوڑ دو، ابھی یہ پچھلے دنوں کوئی ہفتہ ہوا ہے کہ ہم نے جو جامعہ ختم نبوت کھولا ہے گجرانوالہ میں، تو اس کے توسط سے اس کی محنتیں رنگ لانی شروع ہوئیں، تو ایک ہمارے طالب علم، جامعہ کے طالب علم کے محلے دار قادیانی فیملی کو آجز نے کلمہ پڑھایا ہے، مسلمان کی ہے، ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہوا۔ او بھائی یہ ہزاروں کو چھوڑ دو، یہ 6 فرد ہی کافی ہیں۔ او بھائی 6 فرد بھی چھوڑ دو، صرف ایک فرد بھی اگر 25 سالوں کے اندر تمہاری کمیونٹی کا ٹوٹا ہے تو یہ تم لوگوں کو بہت بڑا نقصان ہے۔ بے شک، ہاں یہ پہنچایا ہم نے، یہ نقصان پہنچایا ہم نے تمہیں، لیکن تم بتاؤ کہ تم نے جو مخالفت کر کے ہمارا کیا نقصان پہنچایا ہے وہ بتاؤ۔ رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ عمر باب ان سے سوال کرنا ہے نا ہم نے کہ تم بتاؤ، تم یہ جو مخالفت کرتے ہو ہماری، ہمیں کیا نقصان پہنچایا وہ بتاؤ۔ ہم تو سمپل سی بات کرتے ہیں کہ میں یہاں پر اعلان کرتی ہوں کہ مفتی صاحب کی 25 سالہ ریکارڈنگز، ہم کسی بات کا اعتبار نہیں کرتے، وہ ریکارڈنگ لے آئیں، آپ کے پاس یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ اب آپ کی خدمات تو یہاں پر موجود ہیں، اب مخالفت کرنے والے اپنی کارکردگی وہ سال کی دکھا دے، میں 25 سال تو بڑی دور کی بات، بالکل ٹھیک ہے، ہمیں 1 سال کی دکھا دے، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، گالیاں کھائیں گے آپ سے، بالکل ٹھیک ہے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کر لیں اور اپنی کارکردگی دکھا دیں 1 سال کی، اور اب مفتی صاحب کی 25 سال کی دکھا دیں جو انہوں نے کیا ہے، تو ہمیں جتنی گالیاں دے سکتے ہیں آپ دیکھیے، ہم سننے کو تیار ہیں، آئیں میدان میں تو آئیں نا، آپ کچھ ہمیں دکھائیں تو صحیح۔ جی مفتی صاحب، اچھا یہی بات کچھ اس طرح کی بھی ہے کہ کچھ مخالفین رنگ کے ہیں نا، مخالفین طرح کے، جی اچھا کچھ مخالفین تو ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ کے مخالفت کرتے ہیں، ان کا ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ مخالف ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کے اور اپنے آپ کو اوپر سے مجاہد ختم نبوت کہلوا کے وہ کہتے ہیں ہم تو مجاہد ختم نبوت ہیں جی، بے شک ایسا وہ کرتے ہیں مخالفت۔ اچھا اب ان کا تھوڑا سا آپریشن کر دیں، ان کا بھی تھوڑا سا آپریشن کرتے ہیں۔ اچھا میں دیکھتا ہوں کہ جو قادیانیوں کے رد کے اوپر ہم نے دلائل سال پہلے کے دیے ہوئے ہیں، یا وہ والے دلائل کے جو آجز نے ٹک ٹاک کے اوپر آ کے دیے،
जी उनको वो एक ब्राड के ऊपर सुन करके अगले दिन अपनी ब्राड पे बैठ के वही हवाले पेश कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इन लोगों से तो इतनी जुर्रत नहीं कि तहकीक की, कि कम से कम तहकीक तो अपनी पेश कर दो फिर। तहकीक तो अपनी पेश कर दो, कोई दो और हदीस, ज़ईफ हदीस का एक ज़ाब्ता ये है कि हदीस का कोई रावी जो है ना मुदल्लिस ना हो। मुदल्लिस कौन होता है? मुदल्लिस उस रावी को कहते हैं जो तदलीस करता है, कि मतलब ये है कि जिस वास्ते से उसको वो हदीस पहुंची है वो उस वास्ते को बीच में से ख़त्म कर दे। जी बिल्कुल। वो उसके बाप ने उसको सुनाई थी ये हदीस, वो कहे नहीं मुझे, अच्छा बाप ने सुनी थी अपने उस्ताद से, तो ये क्या करे कि बाप को बीच में से हज़फ कर दे और कहे कि मैंने वो डायरेक्ट उस्ताद से सुनी, डायरेक्ट समीतों पे आ जाए। हाँ जी, उससे सुनी। तो अब मुहद्दिसीन कहते हैं कि ऐसे बंदे की तो हदीस ही हम कबूल नहीं करते, क्योंकि ये तो तदलीस करता है। ये तो मतवातर है ही नहीं, ये तवातर हाँ, तो भाई ये तुम लोग तो तदलीस के वो कर रहे हो कि कम अज कम तुमने उसूली तौर पे ये था कि कम अज कम तुम्हारी अक्ल तो इतनी है नहीं, ना ही तुम्हारी इतनी तहकीक, ना तुम्हारी रिसर्च इतनी, तुमने जिस बंदे से वो चीज़ सुनी उसको बीच में से हज़फ करके लाओ जी, नहीं ये मैं आज तुम्हें एक हवाला पेश करता हूँ जी। अच्छा, हवाला पेश करने के बाद देखें उतर रहा ये कि हवाला पेश करने के फौरी बाद वो मुफ्ती बशर तेरी पहन दी आई तेरी लो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई ये है करतूतें इनकी। बंदा बताएं क्या करे, यहाँ पे बंदा क्या करे बताइए। देखिए यहाँ पर हमारे साथ वो लोग हैं माशाल्लाह, पलवान कौन साहब हैं, साहब हैं, इश्क इलाही साहब है, सबसे पहले इश्क इलाही साहब। अब देखिए इश्क इलाही साहब आपके सामने सवाल है कि मुफ्ती साहब की कोशिश, उनकी काविशें और उनका दीन के साथ जो मुंसलिक होना, वो खुद गवाही देता है। आप यूट्यूब पे देख लें, आप इंस्टा पे चले जाएं, आप फेसबुक पे चले जाएं। अब जो लोग मुफ्ती साहब के लिए या उन लोगों के लिए जो दीन के लिए निकले हैं, उनको जब मुफ्ती साहब के हवाले पेश करने के बाद वो गाली गलौच मुफ्ती साहब पे करेंगे, तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? आपकी क्या राय है और इनकी किस तरह मजम्मत होनी चाहिए? जी जी सिस्टर, मेरी राय ये है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ सख्ती के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि जो लोग दीन का काम कर रहे हैं और दीन के लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर उनके साथ कोई उनकी बेरुमती करेगा तो मुझे तो खुद ये चीज़ पसंद नहीं है ना, और मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, और वो लोग भी मुझे अच्छे नहीं लगते जो आगे से गालियाँ दें। तो इसलिए मैं इसके बारे में सख्त लहजा और सख्त बातचीत करना पसंद करता हूँ। जो अगर ऐसा करेगा तो उसके साथ सख्ती के साथ पेश आया जाए। लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया है, तो आप समझते हैं कि ऐसे लोगों की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। हम वो लोग जो दीन का काम करना चाहते हैं वो इनकी ब्रॉडों पे मत जाएं और इनको अपना अनब्लॉक, इनको ब्लॉक करें, और इनकी रिकॉर्डिंग जो है वो टिकटॉक के ऊपर भेज के, साइबर क्राइम को भेज के इनके खिलाफ जितनी भी कोशिश कर सकते हैं उनको करनी चाहिए। आप बिल्कुल सिस्टर, बिल्कुल ऐसा ही मेरा मकसद भी यही है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनकी साइबर क्राइम को रिपोर्ट करनी चाहिए, और उसके बावजूद इनके साथ सोशल मीडिया के ऊपर जैसे हम रिपोर्ट मारते हैं वो रिपोर्टें मारनी चाहिए, और जो भी इनके मुतल्लिक हो सके वो करना चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर शराज साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें ये फितरों का दौर है। एक फितना तो वो है जिनके साथ हम लड़ रही हैं, वो मुनकरीन हदीस लगा दें, मुनकरीन लगा दें, वो कादियानी लगा दें, लेकिन कुछ अपने लोग जो अपना मुसलमानी का लिबादा ओढ़कर उलमा को, वो उन लोगों को जो लोग दीन के ऊपर काम कर रहे हैं उनके रुकावट बनते हैं, उनको गलीज अलकाबात से पुकारते हैं। ऐसे लोगों का सदेबाब क्या है डॉक्टर शराज साहब? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया लिया। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मैं काफ़ी देर से आपको सुन भी रहा हूँ। तो जो आप जद्दोजहद और जहाद कर रही हैं उसको वो बिल्कुल आप जारी रखें। और मुफ्ती मुबश्शिर साहब के बारे में आप जानते हैं?
बाकी जो प्रॉब्लम जो मुझे जो कुछ अजीब सा लगता है मीडिया पे आके, वजह ये है कि हमारे लोग गालियां बहुत देते हैं। हम ये गालियां देने की बजाय हम कोई अपना मुस्बत तो यहाँ पर रद्द-ए-अमल ये पेश ऐसा करें तो माजरत के साथ हमारे लोग का लफ्ज निकाल दे, यही तो बात हम कर रहे हैं कि जो गलत बात काम करते हैं ना, उनका असर चेहरा हमारे पास होता नहीं है। जो अपने आप वो जो मुसलमान अपने आप को शो कर रहे हैं, लेकिन वो मुसलमान है नहीं, वो एक थर्ड पार्टी है। सरदार ये नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब आपने इतनी ये हमारे लोग ये बीच में से निकाल दे। बेशक आप लिबादा उड़े के मुसलमानों का लिबादा उड़े ये साथ इजाफा करें कि जो मुसलमानों का लिबादा उड़ के बैठे हैं वो ऐसे करते वो हैं। अब ये कहें बिल्कुल, क्योंकि एक मुसलमान का ये शेवा नहीं होता, वो अपने उलमा को अपने वालिदैन से ज्यादा अहमियत देते हैं, उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं। वो इस तरह नहीं कर सकते जो कुछ वो कर रही हैं। जो लोग दीन का काम करते हैं उनके रुकावट एक मुसलमान रख सकता है? हरगिज नहीं। लिबादा ओढ़ कर जो लोग ये बात जो है ये आप कहें। जी रज़ाक साहब क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी रज़ाक साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस आ रही है जी क्या कहेंगे आप? मुफ्ती मुबश्शिर साहब को जानते हैं आप? हाँ जी हाँ जी क्या जानते हैं उनके बारे में? अच्छे हैं किस सेंस में, मतलब क्या अच्छा लगता है आपको? ये गले दीन की बताते हैं। हाँ जी। और अगर कोई शख्स दीन के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दे 20 साल 15 साल 20 साल, और उसके बाद कुछ ऐसे मुनाफिक लोग जो बज़ाहिर तो मुसलमान अपने आप को कहें लेकिन उनकी ज़ुबानों में गलाजत हो, वो दीन में रुकावट बनते हैं, उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए, क्या होना चाहिए उनके साथ? तो फिर बुरा ही सलूक होना चाहिए। मसलन कैसे? कैसे? उनको सज़ा मिलनी चाहिए जो सज़ा बनती है। ठीक हो क्या? सैयद कैसर अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल आपने सुन लिया जी, जवाब के मुंतज़िर हैं। जनाब आपके पास गुस्ताखे अहले बैत बैठे होते हैं, मोहम्मद बिन अली वाली आईडी, चाहे को सहाबा को गाली दे वो भी बुरा है, लेकिन रसूल अल्लाह के सारे घराने को गालियाँ निकालने वाले बंदे आपने पास बिठाए होते हैं। ये देखें सैयद कैसर अब्बास साहब भी जो बात कर रहे हैं, बात ये है कि जो जिसको आप जो समझ रहे होते हैं मेरे भाई, वो होता नहीं है। आपकी तो बात हो रही है, आप तो अच्छे इंसान है, आपकी मैंने आप ज़बान मेरे से भाई सुना। मेरी बात अगरचे आप नहीं कर रहे, लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं, क्या आपने बिठाया होता है फलां को? यही तो बात हम कर रहे हैं कि जिन जो हमें तो आपका भी नहीं पता जी, मेरा भी नहीं पता आपको। यही बात है ना, ये भाई सोशल मीडिया है, यहाँ पे किसी का कुछ पता नहीं है कौन के है। दूसरी बात भाई ये तो है उसे परख कि कर लेना देखिए मेरी बात चाहिए। सुने, अगर तो एक मिनट उमेर बाब एक मिनट ठहरो। जी ठीक। अच्छा जी, कैसे परखें जी सैयद साहब, मुझे सर बताइए आप सर अगर आपके पास बंदा बैठता है तो आपको उसका पता तो चलना चाहिए, उसकी कैसे आईडी का। कैसे आपको मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन करेंगे आप? मैं करूँगा, मैं जी कुछ करें और। जरा, एक मिनट मैं अभी करता हूँ। एक मिनट मेरा कैमरा, एक मिनट शाह जी, मैं अभी आ गया ये। शाह साहब लेकिन हमें क्या पता कि कहाँ का है कौन है? अब हाँ मैंने जी। आपको देखा, कैमरा आपने ऑन कर दिया, मेरा मुझे तो क्या कैमरा मैं अब कुछ मुझे और नहीं मैं- अब करें जी, सैयद साहब बात करें। जी मैं कहता हूँ गुस्ताखी जो भी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी मेरे अहले भाई बैत। कैसी कार्रवाई, कोई कार्रवाई का तरीका तो क्या हो? हमें उस लाने बरात तो कर सकते हैं ना। इलाने पर तो हम तो लितर ही लगा सकते हैं ना, मुंह से जुबान से, बस। देखिए और मुफ्ती क्या साहब कर एक और चीज, मुफ्ती साहब यहाँ पर या तो किसी ब्रॉड पर बैठ के हो रहा हो तो फिर तो जिम्मेदार है। अब जैसे हम अब लोग वही बातें है ना, बातें ये है कि देखें उमेर बाब के मौजू का रुख बदल दिया जाता है ये कह करके कि तुमने जी अपनी ब्राड पर फलां बंदों को बैठाते हो, इसलिए हम तुझे गालियां इस वजह से निकालते हैं कि तुम्हारी ब्राड। ओ भाई हमारी ब्राडें आजाद ब्राडें हैं, सोशल मीडिया है ये आजाद,
हमारी बला से हमें किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है कि कौन आने वाला कौन है। बिल्कुल। और अपना मुफ्ती साहब ये भी कि और हमारी अच्छा ब्रांडों उमेर के बाप ऊपर होता ऐसा ये हो रहा है कि दुराने गुफ्तगू अगर वो कोई करता है कोई तौहीन, बिल्कुल, तो और फिर भाई वो डाल दिया जाता है हमारे ऊपर कि तुम अपनी ब्रांडों पे बैठ के करवाते हो तौहीन। चलो और तुम लोग हमें थोड़ी पता है कि भाई आने वाला बंदा वो क्या बात करेगा अभी। देखिए सैयद कैसर साहब, शीयों की ब्रॉड पे जाएं हजरत उम्महातुल मोमिनीन के लिए, और अगर कुछ लोग जो हैं उनको जवाब देते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये चीज़ बताइए, अपना म्यूट खोलिए आप मुझे ये बताएं कि हमें नहीं पता कि आप कहाँ से हैं, कौन सरकार है। वो जो भी करता है ना उस पे लानत बेशुमार है। अगर हाँ जी मातुल बिल्कुल जी, मोमिन लानत ही है जी, लानत ही है यहाँ पे। लेकिन आप जो आप रसूल सैयद अल्लाह साहब, के आप सैयद साहब सुने जरा, मैं आपको एक बात बताऊंगा। ये उमेर बाब है, जब हमने इसके अंदर गलतियां देखी तो इनको भी बताया, जी इनके बिल्कुल, मुंह के ऊपर बताया बैठ के। जी हाँ, उमेर बाप को हमसे इख्तलाफ हुआ, इसने भी बताया। हम तो वो लोग हैं खुले खुले डुले जेन के लोग होते हैं जिसको मुखालफत जो है नहीं की। मुफ्ती साहब ये बात है, मुंह पे बात की कि मुफ्ती साहब ये बात इस तरह है। हाँ, ये बात जो है वो हमारे अंदर तो ये मामला है जी। जिसके अंदर जो मामला होता है हम उसके मुंह के ऊपर बैठ के कहते हैं भाई ये मामला ऐसे नहीं ऐसे। बिल्कुल। हाँ। और दूसरी बात, जो बात आप ये बात कह रही हैं, अगर अब आप है तो अगर मुझे दूसरे लोग आके कहें कि ये तो उम्महातुल मोमिनीन के गुस्ताख बिठाया हुआ है आपने, तो अब मुझे क्या पता आप क्या करके आई हैं। आपके लिए फिर मैं वाजिबुल लानत हूँ। तो हम तो खुद ये बात कहते हैं कि वो शख्स जो नहीं दीन पे नहीं, वाजिबुल लानत किस सेंस में आपने कहा, मुझे समझ नहीं आई। अगर मैं किसी की गुस्ताखी करता हूँ, किसी की दिलआज़ारी करता हूँ, तो मैं भी मुजरम हूँ। जी बिल्कुल, जो भी गुस्साही करता है अंबिया की, अल्लाह पाक की, इस्लाम की, अहले बैत रसूल अल्लाह की, सुने तो सही ना यार, आगे बात करने भी तो देना। मैं अभी बात कर रहा हूँ, बीच में सैयद साहब ऐसे टोकेंगे तो फिर बात तो सही नहीं ना हो पाएगी। जी। सहाबा कराम की, अहले बैत अतहार की, उम्महातुल मोमिनीन की, बेशक ताबईन, तबा ताबईन, औलिया अल्लाह, बेशक के हमारे उलमाए इस्लाम की भी उलमाए इस्लाम, जी। तो किसी की भी कोई तौहीन करेगा हमारे नजदीक तो वो मलामत का हकदार है, उसको फिर मलामत करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल कोई आसरा ही नहीं है रत्ती बराबर भी। बिल्कुल। लेकिन अब आप आई हैं, अब आप के बारे में अगर कोई आके कहता है कि आप उम्महातुल मोमिनीन के लिए इस तरह की गुस्ताखियां करते, तो मुझे तो नहीं पता, आपके माथे पे नहीं लिखा। हाँ जी, हमें क्या पता क्या है, क्या है? जब करेंगे तो देखेंगे कि अगर भाई यहाँ क्या है। करेंगे तो उसकी आपको इजाजत भी नहीं देगी और आपको जो है बाइकआउट आपकी मलामत भी करेंगे हम। किया जाएगा। ठीक है। अब आपको ये बहाना जी आपको फलां बैठा था तो हम आपको गालियां निकाल रहे हैं, वो जो तो बैठा मैंने था, कब गाली आपको निकाली है? गाली कौन निकाल रहा है बहन मेरी? मैं तो ये बात कर रहा हूँ, इन लोगों के खिलाफ कोई हल होना चाहिए। जी सैयद भाई, हम यही तो बात कर रहे हैं कि अब मुफ्ती साहब ने 30 साल अपनी लाइफ के, एक जिंदगी का हिस्सा होता है, बच्चा जवान होकर पढ़ लिख कर अपनी एजुकेशन हर चीज कंप्लीट कर लेता है, मैरिड हो जाता है 25 साल की उम्र, ठीक है। 25 साल एक ऐसा आलिम जिसने जदोजहद की, मुखालफत ली, और मेरे जैसे और आप जैसे लोग जिनके पास इल्म भी नहीं है, जिनके पास कोई अपनी मतलब कोई हमारी कोई 6 महीने की हमारी जदोजहद नहीं है, तो हम उलमा को उठ के तो गलीज बकवासियात करें और हम उन्हीं ब्रॉडों के ऊपर बैठे। क्या हमें उनसे बाइकाट नहीं करना चाहिए? क्या हमें उनको मजम्मत नहीं करनी चाहिए? किसी की भी हो क्या ये हमें मीडिया उनके खिलाफ जो है वो नहीं करनी चाहिए कि उनकी रिपोर्टिंग करके उनकी ब्लॉक करें, उनको बंद करवाएं? आखिर वहां कोई सुनता है, कोई जाता है, तो ये सब कुछ होता है। अगर गालियां देने वालों के नीचे 200 लोग बैठा होगा, जहां दीन की बात होती है वहां पर 5 बंदे बैठे होंगे। तो जब आप हक की बात करेंगे तो आप तनख्वाह रह जाएंगे। तो तनहा हम देखिए, तनहा आप और मैं है ना जो छोड़ते हैं तनहा हक को। जब हम हक के हम साथ कब जुड़ेंगे छोड़ तो बात रहे ही हैं? मिटेगा ना। हम तो हक के साथ हर वक्त हक के साथ हैं। जी सफीर भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
सफ़ीर भाई, जो कुछ हो रहा है मुआशरे में ब्रॉड्स के ऊपर आपके सामने है, क्या क्या फरमाएंगे आप? बाजी मैं तो अभी आया हूँ, यही देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपकी ब्राड के ऊपर जितनी जनाब ये गंदी नस्ल के आते हैं, बस और किसी को भी कुछ नहीं कहते। हमारे उस्ताद मोहतरम के ऊपर कुत्ती के बच्चे ऐसी ऐसी कमेंट करते हैं कि दिल जल जाते हैं। हालांकि हम मिर्जा साहब कहते रहते हैं, मगर ये हरामी ऐसी ऐसी नीचे कमेंट करते हैं ना कि बड़ा गुस्सा आता है। देखें मुफ्ती साहब, बस मैं यही कहना चाहूँ। हमारी रूह है, हमारे इस्लाम का एक रोशन चिराग है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इनको दमाता रखे और इनकी रोशनी हमारे इर्द गिर्द हमेशा फैली रहे। हमारी दिली दुआएं हैं। और आप यकीन करें कि इस तरह के अल्फाज लिखे होते तो आप क्यों नहीं बोलते? मेरे जैसी एक औरत उठ के बोल रही होती है कि ये नाम उतारो, ये तस्वीर उतारो, तो तुम लोग कहाँ गए होते हो? तुम लोग क्यों रिपोर्टिंग नहीं करते? करोड़ों में मुसलमान हो तुम लोग। या तो हम जी बाजी, हम रिपोर्टिंग भी करते हैं। मसला यह है कि आप अपना एक मॉडरेटर जो है उसको कहा करें कि जो कोई औरत के बारे में कोई कमेंट करे, कोई मुफ्ती साहब के बारे में कोई गलत कमेंट करे, वो उसको फौरन डिलीट कर दिया करे उसकी कमेंट को, या तो उसकी कमेंट को ब्लॉक कर दिया करे। देखें वो जो ऐसे बड़ी दिल आजारी होती है भाई जी, बड़ी। परसों भी आपकी ब्राड के ऊपर 5-6 औरतें बैठी हुई हैं, नीचे आके उन्होंने माँ बहन ये वो कुत्ता दला, यकीन करें फिर वो औरतों का मामला ऐसा होता है कि फिर बंदा यहाँ से हम भी कुछ नहीं कह सकते। उनको हमेशा मॉडरेटर बनाया है, ठीक है। मैंने हमेशा आप में से काका स्पाई आ जाए, दूसरे आ जाए, मैं उसी वक्त उनको तमाम राइट्स दे देती हूँ। नंबर 1। नंबर 2 कि मुफ्ती साहब के बारे में अगर कोई शख्स बात करता है तो गोया कि उसने हमारे दीन के ऊपर उंगली उठाई। हमारे वो मुहाफिज जिन्होंने 25 साल तक हमारी दिल, हमारी जान, हमारी हर चीज इनके ऊपर कुर्बान है। हम इस चीज की इजाजत नहीं देते, लेकिन हम लोग बातें करते हैं, हम लोग रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते? हम उनके खिलाफ जो है उनकी रिकॉर्डिंग थोड़ी क्यों सी नहीं लगाते? उमेर बाब आप चुप होइएगा जरा। अलीम साहब आए, इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। अलीम साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ठीक है। मुफ्ती साहब मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, फिर आप जितना मर्जी बोलिएगा। आपकी उम्र बहन बड़ी इज्जत कर रही है, बड़े अच्छे अल्फाज आप भी बोल रहे हैं। अच्छा चले उमर बाप को छोड़े, मैंने ना कब से बड़े दिनों से मैं आपको तलाश कर रहा था कि अलीम साहब आएंगे, कोई आमना सामना होगा तो कोई गुफ्तगू हम करेंगे। एक मिनट उमर बाप, एक मिनट जरा। उमर बाप सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दीजिए। अलीम साहब, आपने कहा कि मैं बड़े अच्छे अल्फाज बोल रही हूँ, कभी मेरे मुंह से मुफ्ती साहब के लिए बुरा अल्फाज सुना है आपने? तो वो बयान कर दें। मैंने उम्र बहन कभी आपके मुंह से आज तक कभी उमर बाप जरा चुप रहिएगा, मेहरबानी। इसने बार बार आपको खिताब करना है, अब मैं इससे बात करने लगा हूँ। मुनाफिक कह रहे हैं, इनके मरीज हैं। मेहरबानी बीच में बोलना नहीं है। आपको मुनाफिक कह रहे हैं, इनके शागिर्द आपको मुनाफिक कह रहे हैं उमर बाप। अच्छा जी अलीम साहब जरा एक थोड़ा नेड़े हो जाए। अलीम साहब, उस्मान रिजवी आपको मुनाफिक कह रहा है। उमर अलीम साहब नेड़े हो जाए जरा। चलो। अच्छा ये एक हवाला है, मैंने पढ़ रहा था तो ये मुझे समझ नहीं आया। रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 176। अगर आपके पास है तो जरा खोलिएगा, जरा मेहरबानी करिएगा। रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 176। यार चले ही गए हैं आपने, मैंने तो अभी हवाला ही पढ़ा है। अलीम साहब ऐसे नहीं भाई। अलीम साहब तो ये तमाम दोस्त सुन लें कि अल्लाह की कसम मैंने नहीं निकाला, अल्लाह की कसम मैंने बात करूंगा। ये जी अलीम साहब हवाला आपको मैंने बात तो सुने ना, जो हवाला तो सुन लें। अलीम साहब मेरी बात हवाला तो सुन लें, आप हवाले नहीं सुनते तो ऐसे गलत बात है। हवाला है रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 176। जिल्द 17 सफ़ा 176। मिर्जा कादियानी फिर चले गए हैं। अच्छा ये चले मैं पढ़ के आप सुनाने लगा हूँ, जरा उतनी देर आप ना सुन लें। अच्छा जी, एक बुजुर्ग अपने एक वाजिब तज़ीम मुर्शिद के एक ख्वाब, जिसको इस ज़माने का कुतुबुल अक़ताब और इमामुल अब्दाल ख्याल करती हैं, ये बयान करते हैं कि उन्होंने पैगम्बरे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और आप एक तख्त पर बैठे हुए थे और गिरदा गिर्द तमाम उलमाए पंजाब और हिंदुस्तान गोया बड़ी तज़ीम के साथ कुर्सियों पर बिठाए गए। everybody।
یہ جی ذرا مفتی ذرا مبشر تھوڑا جا بھائی، ساتھ لو ذرا حوالہ جی تے پڑھ لیندے ہو. جی یہ میں نے اس لیے آپ کو اچھا تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ احمدی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی بات جی جی میں نا حوالہ ذرا پڑھ لوں تو یہ جواب بعد میں دے دیں گے عبداللہ صاحب. اچھا جی بٹھائے گئے تھے اور تب یہ شخص جو مسیح موعود کہلاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا، جو نہایت کری شکل باندر کی شکل کا مرزا قادیانی وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. مرزے نے خود لکھا ہے بھائی اپنے آپ کو، کہہ رہا ہے کہ میں نہایت بھی کری آپ کو شکل گالیاں نکال رہا تھا یار. مفتی مبشر شاہ گالیاں نکالتا ہے آپ کو. میں گواہ ہوں، میں ثابت کر سکتا ہوں. یہ نیچے جو ہے نا، یہ نیچے عثمان بھی آپ کو منافق لکھ رہا ہے. یہ اتنا شکرد ہے، یہ بڑا گندا مفتی ہے، اس کی بات نہ سنیں. جی مفتی صاحب آپ بات کریں. امی بہن میری بات سنیں. علیم صاحب میری بات سنیں، لکھ رہا ہے وہ آپ کو میری پہلے منافق بات لکھ رہا سنیں، ایک ہے. سیکنڈ. یہ ان علیم کا صاحب، علیم صاحب میری بات سن لیں. جی مفتی صاحب آپ بات کریں. مفتی صاحب میوٹ ہٹا لیں. کیا یہ آپ کا نا کوئی موڈیریٹر ہے رباب؟ جی میں سب کو ہٹا رہی ہوں، صرف آپ کو رکھ رہی ہوں تاکہ کوئی یہاں پر مرضی نہ ہاں کرے. یہ نا یہ کوئی آپ کا وہ ہے وہ کر رہا ہے ٹھیک ڈرامے ہے، بازی. میں ابھی ساروں کو جو ہے نا میں جواب دے رہی ہوں. اچھا جی سنیں جی، اب حوالہ میں کمپلیٹ کرنے لگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا جو نہایت کری شکل یعنی خنزیر کی شکل کا مرزا قادیانی اور کسی باندر کی شکل کا مرزا قادیانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. یہ مرزے نے خود لکھا ہے بھائی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اور میلے کچیلے کپڑے تھے، ٹٹی لگی ہوئی تھی، موتر لگا ہوا تھا، گن آ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی. تو مرزا قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ تب ایک عالم ربانی اٹھا. میرے باپ کے بارے میں غلط باتیں یار کرتے ہو، ایک کافر منٹ کہتے ہو، پھر یار اس طرح کی باتیں کرتے ہو. حوالہ مینوں پڑھ لیندے یار. اس کو کون اٹھا رہا ہے عمر باپ؟ موڈیریٹر سے ہٹا دے تمام. پلیز علیم صاحب کو کوئی نہ اٹھائی ہوئی ابھی. جی آپ بات کریں. شاید محمود شاہ واحد یا محمد علی روپڑی بوپڑی، اور اس نے عرض کیا کہ یا حضرت یہی شخص مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو دجال ہے، اور نبی کریم نے فرمایا یہ دجال ہے، اور مرزے نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دجال ہے مرزا قادیانی. مرزا قادیانی دجال ہے. تب مفتی صاحب 2 دن ایک منٹ یہ آگے حوالہ بھی باقی ہے. جی حوالہ پڑھے بغیر 2 دن پہلے اس کی کتابوں سے ثابت کر دیا تھا سر سید احمد کی بقول. تب آپ کے فرمانے سے اسی وقت اس کے سر پر جوتے لگنے شروع ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور مرزا قادیانی دے سر وچ جتیاں پیاں، لتر کھادے مرزے قادیانی نے. او مردیو علیم صاحب تمبی ٹائٹ کر لو ذرا، بعد چ تھانوں سی کال تے چکنے ہیں تے جواب دے آج. اچھا جی، سر پر جوتے لگنے شروع ہوئے جن کا کچھ حساب اور اندازہ نہ رہا، اور آپ نے ان تمام علماء اچھا کوئی حساب اور اندازہ ہی نہیں کہ کتنے جوتے پڑے. اور مرزے کوئی حساب اور اندازہ نہ رہا جی، کچھ حساب اور اندازہ نہ رہا کہ مرزے کے سر پہ کتنے جوتے پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام علماء پنجاب اور ہندوستان کی بہت تعریفیں کی. مفتی مبشر شاہ کی بڑی تعریفیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتی مبشر کی بڑی تعریفیں کی. علماء پنجاب، میں بھی پنجاب کا ہی عالم ہوں بھائی، تو بڑی تعریفیں کی. اور ہندوستان کی بہت تعریف کی جنہوں نے اس شخص کو کافر اور دجال ٹھہرایا. اور آپ بار بار پیار کرتے اور کہتے تھے کہ یہ میرے علماء ربانی ہیں جن کے وجود سے مجھے فخر ہے. آؤ جی مربی جی عبداللہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی عبداللہ صاحب. ہاں جی
ਪੱਟੋ ਕਾਲ ਪੱਟੋ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੈ। हाँ जी हाँ जी मैं आ गया, फिक्र ना करो। हाँ जी। मुफ्ती साहब पहले तो मैंने दसो, तुसी 5 दफा मेरे को 5000 तो ज्यादा जुतियां खरीदियां ने। हकीम राशिद साहब आए हैं जो मिर्जा साहब की गांड के अंदर हाथ देने वाले ओ चुप कर तू कुत्ती दिया पुत्रा, मैं फिर गाला शुरू कर दी। मुफ्ती साहब रिकॉर्डिंग ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। तू मेनू गल कर, बकवास बंद करो तुसी। मुफ्ती साहब बंद कर बकवास। मुफ्ती और साहब तू ये बकवास कीमती बंद रिकॉर्डिंग कर। लगाएं। उमेर बाप, अगर आपने मुझे ऊपर लिया है तो ये किसकी माइक ओपन है यार? ये माइक किसका ओपन है? ये ऊपर आया तो साथ आपने बंद। हेलो, मेरे बाप विराट को गिरा के दोबारा आए। मेरे बाप विराट को गिरा के दोबारा आए। मेरे बाप बहन विराट को गिरा के दोबारा आए। सिस्टर, अब ये नहीं बंद होगी जब तक आप ब्राड नहीं बंद करेंगे। विराट को गिरा के दोबारा आए। विराट गिरा दे। वो मेरे बाप विराट को गिरा के दोबारा आए। सिस्टर ब्राड गिराएं। ब्राड को एंड करके दोबारा आए, बस बंद हो। विराट को क्लोज करें, नीचे गिराएं। किसी को नीचे गिराने से मसला हल नहीं होगा। आप विराट को नीचे गिराएं तो दोबारा आए। वो मेरे बाप वो यहीं पे बैठा हुआ है, आप विराट को नीचे गिराएं और दोबारा विराट को ऑन करें। कौन बैठा हुआ है? नहीं वो असल में ना उन्होंने ऑटो कर दिया था इसको, वो बंदा पीछे चला। वो अभी भी बैठा हुआ है मुफ्ती साहब, वो अभी भी बैठा हुआ है। अच्छा चले जी, ये हकीम राशिद साहब जो कह रहे थे वो सुन ले जरा, वो मैं अपनी तरफ से। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਆੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕੁਆੜੇ, समझिए ना। तो भाई आप भी तो अब मिर्जा साहब की गांड में हाथ डाल के तबरक लेने की कोशिश कर रहे हो ना। तुम तो लेने की कोशिश, आप भी तो अब मिर्जा साहब की गांड में हाथ डाल के मैंने आपको कहा विराट को नीचे गिराएं की कोशिश कर रहे हो ना। आप ब्रॉड ਬਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਬਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ आप ब्रॉड बंद करके दोबारा देखा ना, ड्रामा करते हैं जी, ये वो बस जब इनके लोग आ जाते हैं ना कि अब सुनने लगे हैं तो वो ड्रामा करते हाँ हैं। नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बात ये है कि ये ड्रामे करके क्या ये मिर्जा कादियानी को बचा लेंगे? ये वाली हरकतें करके क्या मिर्जा कादियानी बच जाएगा? जिन्हें अल्लाह मारे उन्हें कोई नहीं बचा सकता। हाँ हाँ हाँ, अभी 26 मई आ रही है ना, तकलीफें शुरू हो गई हैं इनको जी। 26 मई मिर्जा कादियानी की मौत का दिन है। बेशक मौत। ये इफ्तिखार चीमा की एक ऑडियो सुनाने लगा हूँ, सुनिएगा जी। जिल्लत की मौत साथ पूरा नाम हाँ जी, जिल्लत की मौत। वो खुद इफ्तिखार चीमा कह रहा है कि मिर्जे कादियानी ने 4 टट्टियां आई। सुनिएगा।
भाई ये दूसरी इतराज वाली बात है, लाखों बंदे असहाल यानी टट्टियों की मौत से फौत होते हैं, इसमें क्या बुराई है? यानी टोटल 4 साल आए हैं आपको, 2 आपने जाके बैतुल खुला में खुद किए हैं, तीसरा बी बेड के पास और चौथा भी बेड के पास इंतजाम किया गया था। 4 टोटल आपको असहाल आए हैं, दस्त आए हैं उस रात, और 1 उल्टी आई है, टोटल 5 ये मसले हैं। उसके बाद आप चारपाई पर रात को 3 बजे चले जाते हैं, लेट जाते हैं, और सुबह 10 बजे आपकी वफात हो जाती है। तो मुझे ये बताएं कि अगर किसी बंदे को 4 दफ़ा उस रात टॉयलेट में जाना पड़ता है, 2 दफ़ा बेड के पास उसका इंतजाम किया जाता है, तो ये तो बुरी मौत है। 4 दफ़ा तो जो नौजवान है इसको भी पेट खराब हो जाए तो इसका भी 4 दफ़ा मसला हो जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि इसमें आपको बुरी बात कौन सी लगती है। यार अलीम साहब नीचे बैठे हैं। अलीम साहब आपको मैं नहीं ले सकता, आप ना बड़े गलत इंसान है भाई। मैं तो समझता था कि कादियानी मुरब्बी अलीम साहब बड़े अच्छे इंसान है, लेकिन आप तो बड़ी चवल निकले हैं मिर्जे कादियानी की तरह। तो या को केड़ा कादियानी है भैया, जवाब ते वो यार। इफ्तिखार चीमा कहंदा जी वो मिर्जे नूं 4 टट्टियां आईयां सन मरन वक्त, ते जब के मैं 40 टट्टियां ओदियां बरामद कर सकां 40 टट्टियां है ना, सिफर गैप कर छड़िया जिन्ने। मिर्जा साहब का दर्जा घटा छड़िया इन्हें। 50 में भी सिफर गायब हो गया था ना। ओ ही तो कहना वहाँ, सिफर गायब करना इनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। 2 मिनटों में सिफर गायब कर देते हैं। ये दोबारा सुने जी इफ्तिखार चीमा साहब क्या फरमा रहे हैं। भाई ये दूसरी इतराज वाली बात है, लाखों बंदे असहाल यानी टट्टियों की मौत से फौत होते हैं, इसमें क्या बुराई है? यानी टोटल 4 साल आए हैं आपको, 2 आपने जाके बैतुल खुला में खुद किए हैं, तीसरा बी बेड के पास और चौथा भी बेड के पास इंतजाम किया गया था। 4 टोटल आपको असहाल आए हैं, दस्त आए हैं उस रात, और 1 उल्टी आई है, टोटल 5 ये मसले हैं। उसके बाद आप चारपाई पर रात को 3 बजे चले जाते हैं, लेट जाते हैं, और सुबह 10 बजे आपकी वफात हो जाती है। तो मुझे ये बताएं कि अगर किसी बंदे को 4 दफ़ा उस रात टॉयलेट में जाना पड़ता है, 2 दफ़ा बेड के पास उसका इंतजाम किया जाता है, तो ये तो बुरी मौत है। 4 दफ़ा तो जो नौजवान है इसको भी पेट खराब हो जाए तो इसका भी 4 दफ़ा मसला हो जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि इसमें आपको बुरी बात कौन सी लगती है। गप मारदा जी पे इफ्तिखार चीमा। मिर्जा साहब दा ग्रेड घट कर छड़िया इन्हें भाई। अच्छा ये पता नहीं मोहतरम है या मोहतरमा SP साहब जी, बोलें आप। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुफ्ती साहब? थोड़ा जा ऊंचा बोलोगे, मैं असल च ऊंचा सुनना। अच्छा क्या हाल है जनाब, ठीक हो, खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी माशाल्लाह कादियानियों की तरफ से ही आप जो है ना परेड कर रहे हैं, माशाल्लाह। हम आपके हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। जी जबरदस्त जी। तो क्या आप इसके ऊपर कोई कमेंट तो करें कि इफ्तिखार चीमे ने सच बोला है कि झूठ बोला है? सच बोला उस्ताद मोहतरम, बिल्कुल सच बोला है। नहीं सच नहीं बोलिया, झूठ बोला, गप मारी सुन। 4 नहीं सन टट्टियां आईयां मेरे दिन 40 टट्टियां आईयां 40, वाह जी वाह। दिन और रात 100 दफा टट्टी मूत्र ते खुद मिर्जे ने लिखा है कि मैनू दिन और रात 100 दफा टट्टी मूत्र होंदा है। ओ तेरी खैर। मिर्जे दियां टट्टियां दा ग्रेड घटा छड़िया इन्हें। क्या बात है उस्ताद मोहतरम। चलो मनिया ते है ना, भावें 4 ही मनिया। नहीं चलो 4 ते मन गया ना, अगे मन जासी। अदा 2 बिस्तर दे कोल 2 कमरे दे विच। अच्छा चलो 4 ते मन गया ना। अच्छा अलीम साहब आओ ना, जरा कन कुतरियो। अलीम साहब नेड़े ते आए ने भाई, आए ने अलीम साहब। अच्छा उमे बहन, ये आपको जो गालियां दे रहा है, बहन नहीं, मिर्जा साहब बहन की बात तो चल रही है। मिर्जा साहब बहन गालियां देता है। बाजी मिर्जा की बात करें। बाजी मिर्जा ये जो टट्टियां करता मर गया है, वो लाहौर के अंदर लटरीन के अंदर। सारी टट्टियां खा लो, तुम खा लो टट्टियां खा लो। नहीं तुसा खादियां सन, ये तुसा खादियां सन, आपको ये तुसा खादियां सन मिर्जे दियां टट्टियां। मुफ्ती है, ये झूठा मुफ्ती है या नहीं तुम्हारी किताबों में नहीं लिखा हुआ?
खोला मिर्जे दी किताबां, खोला मिर्जे दी किताबां, खोला मिर्जे दी किताबां आ गए, 2-3 मुरब्बी आ गए, मुरब्बी आ गए, 2-3 आ गए मुरब्बी आ गए, कुत्ता भौंकण वास्ते बन्या, ओए 2-3 मुरब्बी आ गए जो भाई। मिर्जा खान दा खालिस कुत्ता है। और ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਸੀ ਦੀ ਤਾਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਸੀ ਦੀ ਤਾਸੀ और रल के पै जाओ, रल के पै करनी नहीं होंदी बकवास मुरब्बी और रल के पै जाओ, रल के पै जाओ। ओए गुस्ताखी हो, एक मिनट ठहर साहब, इज्जत ओए साहब करो, इज्जत करो, तुम्हारी बहन है, हमारी भाभी है वो। ओ यार एक मिनट, ओ यार एक मिनट, तू मेरे नाल गल कर। अलीमा एक मिनट, उसकी इज्जत करो, मेगी तुम्हें बैठने देती है, वरना तुम्हारे जैसों को अलीमा ऐ सुनी जरा, लई कबान की कहंदे पिया, तुम्हारे सर में मार के नीचे फेंक दे। लई कबान दी तो सुन, मेरे पाँव की छुट्टी के बराबर भी नहीं। और भाई जिसने मेरे से बात की है मैंने उसको उसकी बात के हिसाब से जवाब दिया। या तो आप बात पूरी पता कर लें कि बात है क्या, तो फिर आप इधर उथल दे लें। म्यूट करोगे बात का आपको पता कोई नहीं है, सारी अहमदियों को दी है तो फिर दी है, भैन दी खुद च वड़न यार, सारे अहमदी खलोगे ना दी मां दे मैं खुद च वड़ जावां। भाई अहमदी एक हो या दो, जिसने मेरे से जिस अंदाज से बात की है मैंने वापस उसको उसी अंदाज से जवाब। ये जो मुफ्ती है ना, ये शायद को इसने कहा था गालियां निकालने के लिए, फुल गंदा है ये, तो गंदी गालियां बहनों के सामने निकाल रहा है। बहनें बैठी हैं और ये क्या बातें लगा रहे, इतना म्यूट मैंने क्यों बार बार कर रहे हो, फिर मैं थले ला दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब बात नहीं कर रहे, माइक म्यूट कर देना तो असि मॉडरेटर ही पता नहीं किदों दा मेरा माइक म्यूट सी। काफी देर तो लीमा आया यार है ना उमर बाबा आपने बनाए हुए हैं मॉडरेटर, ते कोई लगदा कादियानी मॉडरेटर तुसी बना बैठे हो विच। मुफ्ती साहब सारे आपके हैं, ये देखिए सारे आपके हैं मतलब इनके जो आपको लाइक करते हैं फैसल नहीं वो विच कादियानी कोई होएगा, मेनू ते कादियानी भी लाइक करते हैं। फैसल है, फिर मुफ्ती मुबशर है, फिर गुलाम अली है, फिर मौला अली मोहम्मद नहीं ये सारे मौला अली साहब सब उठा दियो। ओ पीर मेहर अली शाह दे कफन ते मुठा मारा, ओ अफजल खान सब उठा दियो, तो क्या वे सब उठा दियो। ए भाई मैं आडियो हूं दोबारा, मेरा माइक म्यूट सी नहीं इंज नहीं, पार्टी दोबारा शुरू करनी पैनी है। सुनो भाई, कादियानी मुरब्बी लई कवान कादियानी खलीफा मिर्जा मसरूर को क्या कह रहा है सुने जी, तवज्जो से सुने, तवज्जो से सुने जी सारे। ते जिदा वुजू टुटन दा कोई खदशा है वो भावें काल तू थल्ले लै दे। मैं आपकी इतना बेवकूफ समझता नहीं, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही बेवकूफी का मुजाहरा कर रहे हैं। और भाई जिसने मेरे से बात की है मैंने उसको उसकी बात के हिसाब से जवाब दिया है। या तो आप बात पूरी पता कर लें कि बात है क्या, तो फिर आप इधर उथल दे लें। बात का आपको पता कोई नहीं है, सारी अहमदियों को दी है तो फिर दी है, भैन दी खुद ही च वड़न यार, सारे अहमदी खलोगे ना दी मां दे मैं खुद च वड़ जावां। और भाई अहमदी एक हो या दो, जिसने मेरे से जिस अंदाज से बात की है मैंने वापस उसको उसी अंदाज से जवाब दिया है, बात खत्म। बात की आपको तकलीफ है तो पहले उसको पकड़ें जिसने मुझे मजबूर किया है कि मैं उसको गालियां दूं या सारी जमात को गालियां दूं। उसको पकड़ें, उन्होंने फोड़ो, उनको भैन ही का तेरी केड़ी भैन हुई है क्या आया तू इन्हों गाल कड्डी है, ठीक है ना।
ओ भाई तुम उसको पकड़ नहीं रहे, मेरी बोने जाके उंगल देने लग पे कि मैं गाल कड़ी फिर मैं मेरा लुल पुट लो तुम जरा ਤੁਹਾਡੀ मैं खुदे च लुल मारिया ਭੈਣ ਹੀ ਇੱਕੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਗਸ਼ਤੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਮਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਚੋ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਲੋਕੇ ਬੈਠਾ ਭੈਣ ਜਿੱਥੇ ਹੱਗਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੈਣ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਜੇ ਕੋ WhatsApp ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਦੇ ਚ ਲੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਧਰ ਆ ਜਰਮਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਭੈਣ ਯੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਯੁਹਾਨ ਡਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਭੈਣ ਚੋਦੋ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਭੈਣ ਯੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਯੁਹਾਨ ਡਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਭੈਣ ਚੋਦੋ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਭੈਣ ਯੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਯੁਹਾਨ ਡਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਭੈਣ ਚੋਦੋ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਭੈਣ ਯੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਯੁਹਾਨ ਡਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਭੈਣ ਚੋਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈ तुम मेरे पे सवाल उठाओगे तो मैं ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਫੁੱਦੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗਾ जिस तरह बात करोगे उसी तरह बात करूंगा उसने मेरे से जिस तरह बात की है मैंने उसको सेम टू सेम उसी तरह जवाब दिया बात खत्म ठीक है ना अब ये तुम मुझसे पूछो कि उसने क्यों इस तरह बात की है कि मुझे सबको गाली देनी पड़ी पूछो ना उसको जाके ਵੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਂਗਲ ਛੇੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ठीक है ना भाई नहीं इतनी हिम्मत बात सुनने की तो करते क्यों हो मेरे हिम्मत है सुनने की मैं कर भी लेता हूं तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है क्यों करते हो क्यों उसने बार बार मुसलसल उसने बार बार बदतमीजी की ठीक है ना मैंने मजबूर होके फिर जवाब दिया मेरे लोलों नहीं ठंड यार ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਗਸ਼ਤੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਯੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਫੁੱਦੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂ लो जी मिर्जा मसरूर साहब ना लई कमान मुरब्बी को उंगलें दे रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप के अंदर ते लई कमान साहब जनाब फिर गुरिल्ले मुरब्बी साहब सीधे हो गए सिद्ध पतरे हो गए अच्छा जी अगली ऑडियो सुने जी लई कमान साहब मिर्जा मसरूर साहब को क्या फरमा रहे हैं सुनिए जी तो जो करिएगा जी नेड़े नेड़े हो मुरब्बियो ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹ ਫੁੱਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਥੋੜਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੀ ਸਹਿ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਭਾਈ ਮੁਰੱਬੀ ਲਈ ਕਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਏ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ रामा साहब भी आए सन आयो भाई आ जाओ नेड़े हो भाई मुरब्बियो आ जाओ नेड़े आ जाओ इधर मैं दोबारा ऑडियो चलान लगा लई कवान साहब कुछ पुछदे ने पे ए दोबारा सुनिया जे जरा ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹ ਫੁੱਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਥੋੜਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੀ ਸਹਿ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ओ यार अच्छा जी हाफिज साहब आए ने जी हाफिज साहब हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी जी जनाब ठीक अल्लाह का शुक्र जी फरमाएं जनाब क्या फरमाएंगे आप कुछ भी नहीं मैं बस सुन रहा हूँ बात मैं भी आया हूँ अच्छा कुछ फरमाने के लिए नहीं आए आप सुनने के लिए आए जी अच्छा तो फिर नीचे बैठ के सुने जी ठीक है जी जज़ाकल्लाह शुक्रिया किसी और को मौका मिल जाए जी ए साहब आए हैं जनाब जी ए साहब हेलो ए साहब हेलो भाई जी रिपोर्टा ही मारन आए हो बंदे दे बच्चे बनो सफीर किंग तू ही फरमा यार ये और किसी ने कुछ नहीं फरमाना
ਸਫੀਰ ਕਿੰਗ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਇਸ਼ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। बहुत अच्छा है ये जड़े ऐसे जी मैं कमेंट कर इसमें उस्ताद मोहतरम हूँ। ਸਫੀਰ ਜੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਾਕੋ ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਢਿੱਲੇ ਤੇ ਮੱਠੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। नहीं चौको से बंद ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਟ ਲਵੋ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਚਾਕੋ ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਚ ਪਵੋ। ਸੋ ਬਿਸਮਿल्ला। जी जी बिल्कुल ਅਸੀਂ हाँ जी, कमेंट करने ने या सुनना है तो फिर थल्ले बैठ के सुनो। जी 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 बिल्कुल गल फरमाओ। मैं ये आना चाह कि उस्ताद मोहतरम इस टाइम जेडे मिर्जाई बैठे जितने भी इन्ना की उस्मान भाई भी तुसी भी समझाने पियो, मिर्जा नहीं समझिया किसी ने गल ते एक कितों समझो। वो इन्हां की किताबां अपनी सूर बंदर खंजीर के अज मैं हवाला कढ़िया कि नवा हवाला थोड़ी दसना और दसी हवाला कट के मैं अज हवाला सुनाना उस्ताद मोहतरम सुनो थोड़े कड़ी हवाला कड़ी एक सेकंड बस एक सेकंड जल्दी कर। हाँ जी हाँ इश्के इलाही। अच्छा हवाला आ गया जी उस्ताद मोहतरम के के तो तुसा तो सुने असी बड़ा पुराना वाला है कि वो उसने इब्राहिम अहमदिया के तीसरे हिस्से में मेरा नाम मरियम रखा। फिर जैसा कि इब्राहिम अहमदिया ये जाहिर है कि 2 बरस तक सिर्फ मरियम में मैंने परवरिश पाई और पर्दे में नशो नुमा पाता। वो पर्दा कह रहा है जी, वो पूछना से ना कोई एक को। और फिर जब उस 2 बरस गुजर गए तो जैसा कि इब्राहिम अहमदिया के हिस्से चारम सफाई 492 में दर्ज है कि मरियम की तरह ईसा की रूह भी मुझ में नफा की गई और इस्तारा के रंग में मुझे हमला ठहराया गया। और आखिर कई महीने के बाद जो 10 महीने जैसा कि एक पोती को अमल होता है बजरिया इल्हाम के जो सबसे आखिर में इब्राहिम अहमदिया के हिस्सा 552 में दर्ज है कि मुझे मरियम से ईसा बनाया गया और बस इसी तौर से मैं इब्ने मरियम ठहरा। तो कोई उस्ताद जी ये मन तक किड़ी पेश कर रहे कि मैं इसी वजह से मैं जनाब इब्ने मरियम ठहरा। हवाला भी पेश करो। हवाला बकायदा जनाब मैं हूँ पेश करना जी। जिल्द 19 400 सफा 50 जी सवा 50 जिल्द 19 सफा 50 कश्ती नूह दा हवाला है जी। मिर्जा कादियानी हामला हुई मिर्जा बीबी बेगम मिर्जा कादियानी 10 महीने की हामला बेगम। अच्छा अच्छा किसने कमेंट है बाजी हजूरा ये भाई 10 महीने दा अमल खोती नूं हुंदा है। अच्छा बाजी हजूरा ए मलक मुश्ताक साहब इससे कमेंट कर रहे ने जरा सुन सो जी। ए सुनो जी। मुसलमानों के नबी नहीं थे, वो उनकी उम्मत जो सारा थी नहीं जी ऑडियो सही नहीं आ रही। अच्छा ऑडियो सही नहीं आ रही बाजी मैं तुसा की भेजना अगर तुसी सुना दो मलक मुश्ताक साहब ने ऑडियो व्हाट्सएप ते सेंड कर दियो ते मैं हुणे चला देना। जी जी मैं हुणे भेज देना। अच्छा मलक मुश्ताक नजर नहीं आ रहे आजकल किथे वे? वो हिंदू वाले ग्रुप है जी आजकल हिंदू वाले ग्रुप हां वो अमित अग्रवाल ने ग्रुप के बाद ये तुसा ने व्हाट्सएप पे आ रहा है जी। हाँ ते पहले अपनी ऑडियो बंद करो ना इधरों तुहाडी भी इधरों आवाज आ रही है। हाँ हाँ भाई इश्के लाई ये उस्ताद मोहतरम ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਲਖਿਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੁਲਖਿਦ ਹੋ ਗਿਆ। मुलहिद हो गया है? हाँ जी
ਅੱਛਾ 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 ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ। ਕੱਲ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਲਹਾਦੀਅਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਲਹਾਦੀਅਤ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਕੱਲ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ व्हाट्सएप चेक करो जरा, वो चला दियो जरा, सारे लोग सुन। ਇਹ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੇਜੀ ਹੈ? ये वीडियो मलक मुश्ताक साहब ने की है ना जी, इससे कमेंट की था ना इसे। ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ? वीडियो नहीं है मेरे को, वीडियो ही उन्होंने आई है, एक किसी जरा सुन के तो फिर खुद ही दाखिल ਹੋਣੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਡੀਓ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ WhatsApp ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੰਬਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੁਲਹਿਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ, ਔਰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਹਦੀਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਰੋਲੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵਸਵਸੇ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਹਿਦ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ 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 ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁਲਹਿਦੀਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਨ ਪਹਿਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ। ਉਹ ਹਾਰਿਸ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਲਹਿਦ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਗਾਲਬ ਕਮਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਚੁੰਗੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪਹਿਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਫਿਰ ਇਲਹਾਦੀਅਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਹਿਦ ਇਖਤਿਆਰ ਮੁਲਹਿਦੀਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ ਜੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਵਿਗੜਨਾ, ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਰਾਫਾਨ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰੱਖ, ਮਹਿਬੂਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਛੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੱਸੋ ਕਿੰਜ ਘਟਾਣ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ, ਮਤਲਬ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਢਿੱਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਏ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵੀ ਬੈਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੇ ਟੁਰੀ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਕਰਨਾ ਐਕਸ ਮੁਸਲਿਮ। ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ कि एक्स मुस्लिम, तो मैं अभी मुल्हिद हूँ जी, मुल्हिद हो गया, मैं पहले मुसलमान था। ये है वो भाई एक्स मुस्लिम जो अपने आप को कहते हैं मुल्हिद बनते हैं, वो असल में पहले कादियानी होते हैं जी। अब बात करें आप। मैं यही कह रहा था कि मैं कल वो आया था मेरे पास ना, तो कुछ ऐसी अहादीस उठा के ले आया, मुझे कह रहा था कि इन अहादीस पे मेरा जो है ना, मैं मुतमिन नहीं हूँ, ये इस्लाम में क्या चीज़ें हैं। मैंने बोला भाई ये तो इस्लाम में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, हम तस्लीम सर हम करते हैं, बस ख़त्म बात। और ये इस्लाम का रूल है और कानून है। नहीं उसको लेके आए तो ये मिसिज आई हैं कोई जी, नहीं उसको लेके आए तो ये मिसिज आई हैं कोई जी। मिसिज बोलिए आप, रिपोर्टर मारन आए हो, उन कह दिया करो ना आके भाई मैं मिशन ते आया वा, एवं बस मुंह चुके ना कोई गल ते ना कोई बात। हाँ भाई चलो इश्क लाई बात करो। उस्ताद मतलब वो 2-3 दिन पहले ना इधर उम्मे सिस्टर की ब्रॉड पर इनसे मैंने बात करवाई थी उसकी ना। अच्छा तो यार मेरे नाल ते कोई पेड़ पुआ यार ओदा
ਉਸਤਾਦ ਮੋਦਰੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਰਨਾ ਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੇੜ ਪਵਾ ਸੋ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਹੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੋਡ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਕਰਾ ਤੂੰ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਸੂ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਇਹ ਹੋਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲੱਤਰ ਫੇਰੇਗਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਨਾ ਹਮਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਉਧਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜੀਵ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਐਸੀ ਹਦੀਸਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਫਰੀ ਲਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਗਲਾ ਐਡੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਦਾ ਚੱਸ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਤਨਾ ਤੰਗ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਮੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜੋ ਜ਼ਰਾ क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि हर इल्म वाला दूसरे इल्म वाले से बेहतर है ते ओ मैं उम्मे सिस्टर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੀ ਬਾਇਨ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਰਹੇ ਮੰਨੀ ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਗਿਆ ਦਵਾ ਕਰੇ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹਾਂ ਐਡਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਤਾਜ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਣ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੈਰ ਚੱਲ ਸਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜੀ ਜੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਫੇਵਰਟ 49 ਦੀ ਇਹ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੜਦੇ ਜੇ ਪੇ ਇਹ 1122 ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ੇ ਗੋਸੀਆ ਇੱਕ MC ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਕ M ਰਾਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਵਰਟ 49 ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕੁੱਤੇ ਲੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਬਾਇਨ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਰਹੇ ਮੰਨੀ ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਗਿਆ ਦਵਾ ਕਰੇ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹਾਂ ਐਡਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਤਾਜ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਣ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਭੈਣ ਜੋ ਸਾਧੂ ਛਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਸਵਾ ਮਰਵਾਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਨੂੰ ਮਰਵਾਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਖਲੀਫਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਬੁੱਢਿਆ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਭੈਣ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਜ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਫੜ ਭਾਂਡੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਲੇ ਚਵਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਲਾ ਕੇ मजा चाचा अच्छा चाचा ही है भाई चाचा ही है दोबारा सुनो भाई दोबारा अंदर तो मिर्जे ने भी लितर पवाए ਉਹ ਜਿੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਬਾਇਨ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਰਹੇ ਮੰਨੀ ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਗਿਆ ਦਵਾ ਕਰੇ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹਾਂ ਐਡਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਤਾਜ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਣ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਕੇ ਯਾਰ मजा ही आ गया भाई मजा ही आ गया भाई जबरदस्त हो गया अली भाई शुक्रिया भाई अली लगता बह के सुनता है पिया ते शुक्रिया भाई ए चला छड़िए तुहाडी मैं आडियो अच्छा हाँ जी करो ये ते गल भाई सफीर किंग इश्के लाई माइक ओपन कर लो आपस में लड़ी जा रहे अपने आप ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੜਨਗੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲੜਨਗੇ बस मेरे ने जितने भी उस्ताद जी शिविरों दोनों अस्तगफुर पूरे तुफान व्हाट्सएप में ग्रुपों में रिकॉर्ड मौजूद ने कि एक और शहर होना सी वो आने और मेरे ने भैन ऊपर या ऊपर तुम मेरे में गल करो उस तो बाद इस प्रकार सीमा उसने भी आख्या जी कि मैं भी हमला होना ना 40 दिन रह गए मेरे हमला होने चो यानी हर एक तुसी इन्हां दा फॉलोअर चुकोगे मिर्जे ना ते ओदे मिर्जे जुतियां फेरियां ने हर एक फॉलोअर ने देखो
ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਝੱਗ ਵਗੈਰਾ ਬਹਿ ਗਏ ਜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ। आओ ना होए मेरे लगो है बाबा जी हजूर ए यकीम राशिद हो व्हाट्सएप ग्रुपों में जिस वक्त इसने जनाब हो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान की साथी कादियानी बैठे ने लेनो लैन कादियानी बैठे लख दी लाना डुब मरो ए ओ मुरब्बियो निकलो बाहर कादियानी मुरब्बियो एक भी नहीं आएगा उसके काल से तबलीग करो आके सानू आके तबलीग करो ना अपनी ब्रडां खोलियां जे कदे भी नहीं आएंगे बाजी कदे भी तबलीग तबलीग सिर्फ इंग्लैंड ने चंदे कटे करने बाद उन्होंने कोई मकसद नहीं मिर्जे ने तबलीग या मिर्जे नु लित्तर पाउंदे ने गाला कढ़िया खुद गाला करने मिलते हैं मिर्जे नु खुद गाला करते हैं और कितना बड़ा मुरब्बी इन्होंने जनाब जैसी गाल कभी मिलते हैं इन्हों की शर्म नहीं आई कि उसकी जमात जो खारिज कराइए बकायदा जनाब उसी हाले तक नाम जोड़ के रखे। अच्छा उस तो बाद हकीम राशिद ने कितनी गंदियां गालां कढ़ियां ने उस भी हाले तक जनाब इन्हां नाल टच रखे। यार ओ भाई थल्ले ओ कमेंट आंदा है पिया मसीह मूतर साहब दा आंदे ने मेरी टट्टियां दी भी गल करो ओ यार टट्टियां तो याद आया भाई मई दा महीना चल रहा है ते इहदे विच ना अक्सर लोकां नूं टट्टियां लग जांदियां ने गिने दिन रह गए गिने दिन आओ ते कोई हिफाजती इकदामत करके रखो भाई ते वो बड़ी आनी जे तुहानू 26 मई नू ते कोई जेडे मास्क हुंदे ने खरीद लो डब्बियां दे डब्बे ते ओ ध्यान रखना है। अच्छा घरों बाहर नहीं निकलना वो बड़ी आनी जे तुहानू 26 मई वाले दिन ते ध्यान रखना जे क्यों है इश्के लाई जी बिल्कुल उस्ताद मोहतरम मैं खरीदे ने 2 डब्बे यार भाई ओ खदीजा बीबी आंदी ने पे फिर पता नहीं हुण कौन कुड़ी है मुंडा है अल्लाह ही जानदा ही। आ जाओ जी तुसी आ जाओ जी तुहाडी कमी है। हाँ जी तुहाडी कमी है नहीं यार है ते एसपी साहब ने जी जनाब जी। हाँ जी ए खदीजा बीबी दी सुन लीजिए जरा जी बोलो। चलो चिराग बाली साहब कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका ओ जिये रहो जिये वालेकुम अस्सलाम। सर आपका खादम और की हाल है बाबा? इन्होंने स्टिकर बना के ला दिते काका सिपाही नु नहीं चुकना मर जाना काका सिपाही नु नहीं चुकना। अच्छा इथे नवा कट्टा खुल गया भाई अज की जनाब दसो। ओ ले फेवरेट दी है ऑडियो सुनावा दोबारा सुनी जे कि नहीं? हाँ फेवरेट नु मैं राती कल एक ब्राड ते फड़ लिया सी मैं क्या बोल कुत्ती दे बच्चे तू छड़ हर गल नु मैं ओ नहीं ओ भाई ओ कुल पे ने आपस च मुरब्बी ओ एक मुरब्बी आंदा है दूजे नु आंदा तू ओथे लित्तर पवाने मिर्जे कादियानी नु जुत्तियां पवाने। ओ 49 ने एक दिन मेनू भी कहा सी मैं ओनू अलीम नु मैं कहा सी मैं कि जिन्ने मिर्जे नु जिंदगी च पिछले 120 साल दे लित्तर नहीं पे होने जिन्ने पिछले 6 महीने च तू राव कोल लित्तर पवा दिते तो फिर हाँ जी फिर वो जनाब उथे 49 आ गया एसटीसी तलत दी बराड़ ते उथे 49 आ गया कहंदा मैनू काके सिपाही नाल एक लाख इख्तलाफ है लेकिन एक गल इन्हें सच्ची कीती है ये गाल कढ़दा बड़ी है साडी सैयदा नु गालां कढ़दा ये करदा लेकिन एक गल इन्हें सच्ची कीती है कि 110 साल च इतने मिर्जे नु लित्तर नहीं पे राव कोलो जिन्ने अलीम तू पवाए ने। अच्छा यार एक मिनट राव साहब अहमद साहब दी कोई आईडी है जी बोले जी माइक ओपन करो जनाब जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बस वैसे ही सुन रहे थे थोड़ा जी पहले भी कई दफा है लेकिन मेरी हो आईडी इसलिए मैं नवी आईडी बनाई ना महीने तक। अच्छा सुनना है तो फिर मेरा भाई थले बह के सुनो जे कोई गल करनी है तो गल मैं तो नहीं कॉल की थी मैं तो वैसे ही सुन रहा था। नहीं मैं नहीं चक्या जी। अच्छा फिर कोई गल नहीं माजरत कोई अच्छा कोई गल जी। एसपी साहब कोई गल करनी है भाई ने? जी जनाब माइक तुहाडी सही आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? ये आवाज आ रही है जी जनाब कादियानी अभी को ऊपर नहीं आया नीचे सारे ले ऊपर किसी को
उसकी छत रोल करें सही बना के। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੋ ਕੋਈ ਜੀ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਮਾइक म्यूट है, डबल टैप करो यार, डबल टैप करो। जी मुफ्ती साहब ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਾਮੀਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਮੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਾਮੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਏ। ਦੋ ਆਈਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਛੁਪਾਈ ਵਾਲੀ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗਾ। ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਉਹ ਸੀਪਾ ਸਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫੁਰਕਾਨ, ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੀ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੀ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। سارے مرزائی سی میں کلا بیٹھا، کہنا جی آپ بھی بولے جی۔ میں کہا اچھا جی۔ میں کہا دیکھو یار پاکستان میں کتنا ظلم ہو رہا۔ کہتا کیا ہوا؟ میں کہا دیکھو ایک بچی ہے 8 سال کی بچی، اور اس میں مدرسے میں اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ کہتا یار یہ تو بہت برا بات ہے۔ میں نے کہا لعنت ڈالو اس پہ۔ ساروں نے 3 دفعہ لعنت ڈالی۔ میں کہا مرزا لقمان میں 8 سال کی بچی سے زنا شروع کر دیا۔ صحیح کیا ہے۔ لعنت پا دی تھی۔ میں کہ سارے انہوں ایک دم میرے چکے تھلے مارے، تھلے ہی مارنا سی ہوتی کرنا سی۔ دیکھو انہوں نے کل لعنت پوائی، وہ بڑے پھر بعد سے انہوں سارے نے پھر بلاک کر دیتا۔ بڑے خبیث نے سر۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਵੋ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠੋ। صحیح ہے، کال سن کے پھر آئیں آپ۔ اس ٹائم تک دیکھو کوئی سفیر کنگ جی میوٹ لگا لیا آپ نے۔ سفیر کنگ صاحب کیا ان فتنوں کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں ٹوٹتا؟ کیا آپ دکھ نہیں محسوس کرتے کہ امت مسلمہ امت محمدیہ کتنی دور جا رہی ہے اور یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور ان فتنوں کے اندر یہ امت مسلمہ گر رہی ہے؟ ہم ایک جامعہ بنا رہے ہیں، جامعہ ختم نبوت، جس کے اندر تقابل ادیان اور مذاہب کی تعلیم دی جائے گی۔ نو مسلمین کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آ کے ہمارے پاس پڑھیں، جہاں پر لڑکوں کو بھی تعلیم دی جائے گی اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے گی۔ ایسے علماء اور سکالر تیار کیے جائیں گے کہ جو غیر مسلموں کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات دے سکیں گے۔ جامعہ ختم نبوت کی اراضی خریدنی ہے وہ، اور 2 کنال جگہ جناب آپ کی منتظر ہے اور مخیر حضرات کی منتظر ہے کہ مخیر حضرات توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ سب سے پہلے ہم خرید لیں، اس کے بعد اس کی تعمیرات کے مراحل ہوں گے۔ تو ابھی یہ زکوٰۃ نکالنے کے ایام ہے، رجب شعبان اور رمضان، تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃیں کم از کم جو ہیں یہ جامعہ ختم نبوت کو دیں۔ یہ تو زکوٰۃ تو آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے۔ اپنے رزق حلال میں سے بھی آپ نکال کے یہ جامعہ کی جو اراضی ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کی ہے اس کے اندر ہماری مدد کریں۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، جس کے اندر سب سے پہلے ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم الشان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کر سکیں۔ تو اللہ حضرت فاضل بریلوی کے اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے، اور اس کے بنانے کے اندر مخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں، اس کے بعد تعمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے۔
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔